السلام علیکم، میں ہوں آصف علی انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر فنڈامنٹلسٹ۔ دوستو، آج کی یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو 20 سال ایک ایسی سیاسی جماعت کا حصہ رہے ہیں جو کہ اسلام مخالف تھی اور جس کو آئی تھنک گیرٹ وائلڈر لیڈ کر رہے تھے، جنہوں نے قرآن کو جلانے کی گستاخانہ کوشش بھی کی اور مسجدوں کو بھی تالے لگوائے اور کافی زیادہ کارٹونز وغیرہ کی صورت میں مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ جی ہاں، یہ نیدرلینڈ کے ایک شخص کی کہانی ہے جو کہ اسی سیاسی جماعت میں ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ وہ اسلام کی طرف کیسے انہیں کیسے چیزوں نے انہیں اٹریکٹ کیا، کیسے انہیں ان کی سیاسی جماعت یا ان کے اپنے پروپیگنڈے سے نفرت ہوئی یا بیزاری ہوئی، اور بیزاری کی کیا وجہ تھی، کیا محرکات تھے جو انہیں اس سیاسی جماعت سے دور اور اسلام کے قریب لے کے آئے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آرنولڈ ویلٹران کی کہانی۔ جب میں اس اسلام مخالف سیاسی پارٹی PFF کا ممبر تھا، ہمیں زیادہ نہیں تھوڑا اسلام چاہیے، تو میں چاہوں گا کہ قرآن باقی نہ رہے، مسجدوں کو تالے لگ جائیں اور قرآن پر پابندی لگا دی جائے۔ اصل میں انہوں نے مجھے برین واش کر کے ایک اسلام مخالف انسان بنا دیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا مقصد اسلام سے جنگ۔ یقیناً یہ وہ چیز تھی جس کی میں نے ان کی حمایت کی۔ شاید میں اس مذہب سے نفرت کرتا تھا۔ میرا یقین تھا کہ اسلام کا مذہب سماج اور ہماری آزادی کے لیے خطرہ ہے۔ کیا مجھے اسلام سے کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، مجھے اسلام سے مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے مجھے اس پر بے حد افسوس ہے، لیکن میں ایسے کچھ پروجیکٹس میں شامل تھا، بالکل تھا۔ السلام علیکم بھائی آرنولڈ، شکریہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ میں اس سوال سے شروع کروں گا کہ آرنولڈ وان ڈون کون ہے؟ وعلیکم السلام، مجھے یہاں بلانے کا شکریہ۔ یہاں نا میرے لیے اعزاز کی بات۔ میرا نام آرنولڈ وان ڈون ہے، میری عمر 56 سال ہے۔ میں سن 2013 سے مسلمان ہوں، الحمدللہ۔ میں ہیگ نیدرلینڈ میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑا۔ میں کرسچن بیک گراؤنڈ سے ہوں اور اسی حیثیت سے پرورش پائی۔ میں سیاست میں ایکٹیو ہو گیا، پھر PFF نامی اسلام مخالف ڈچ پارٹی کا ممبر بنا، لیکن میں 2013 میں مسلمان ہو گیا، الحمدللہ۔ تقریباً 10 سال ہو گئے۔ میں حال اس میڈیا کی دعوت پر یہاں استنبول میں ہوں۔ وہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں، وہ 40 سے زیادہ ملکوں کے سینکڑوں نو مسلموں کے انٹرویو کر رہے ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ تو اس عظیم شہر میں آنا اور یہ انٹرویو دینا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میں کرسچن کے طور پر پلا بڑا۔ میں کیتھولک اسکول، کیتھولک سپورٹس کلب وغیرہ میں رہا۔ میرے والد ایک پریکٹیکل کرسچن تھے۔ میں اتوار اور کبھی ہفتے کے درمیان چرچ جاتا تھا، لیکن میں کبھی 100% مطمئن نہیں ہوا، اور یہ صرف معمول کا آنا جانا تھا۔ مجھے جانا پڑتا تھا، لیکن کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی، شاید اب دل کی گہرائی میں، اور مجھے حاصل ہونے والے علم کے ساتھ یہ کیفیت ہو۔ مگر بہت چھوٹی عمر میں بھی مجھے کسی چیز کی کمی لگتی تھی۔ کچھ چیزیں مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ 3 خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یسوع مسیح، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ واقعی بات عقل میں نہیں آتی تھی۔ پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میرے لیے بہت عجیب تھیں، مثلاً یسوع مسیح کا خون اور جسم۔ چرچ میں یہ ساری رسمی چیزیں دیکھنے کو ملتی تھیں، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ میں پوری وضاحت نہ کر سکا کہ کیوں، کیونکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، لیکن میں کسی چیز کی کمی محسوس کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ آپ نے اسلام کے بارے میں کب سنا؟ اس مذہب کے بارے میں آپ کا تصور کیا تھا؟ میں نے مغربی ملکوں کے زیادہ تر لوگوں کی طرح اسلام کے بارے میں میڈیا اور سیاستدانوں سے سنا۔ اسلام کو 9/11، عورتوں پر ظلم اور دہشت گردی کی تمام سرگرمیوں کی وجہ سے خطرہ سمجھا جاتا تھا، اور نیدرلینڈ اور مغربی یورپ کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کو خود سے اسٹڈی نہیں کرتے، وہ بس میڈیا اور سیاستدانوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہی کیا۔ میں اسلام کے متعلق صرف یہ جانتا تھا کہ یہ منفی ہے، خطرناک ہے۔ شاید میں اس مذہب سے نفرت کرتا تھا۔ میرا یقین تھا کہ اسلام کا مذہب سماج اور ہماری آزادی کے لیے خطرہ ہے۔ جب میں اس اسلام مخالف سیاسی پارٹی PFF کا ممبر تھا، ان کے سب سے بڑے مقصد اسلام سے جنگ کی میں نے حمایت کی، کیونکہ میرے خیال میں یہ ضروری تھا اور میرا اس پر یقین تھا۔ کیا ایسے اسلام مخالف پروجیکٹس تھے جن میں آپ شامل ہوئے ہوں؟ ہاں، آپ نے وہ مشہور مووی دیکھی ہے، میں اس کا پروڈیوسر نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کیونکہ یہ مووی میرے سیاسی پارٹی میں ایکٹیو ہونے سے پہلے بنائی گئی تھی، لیکن میں مووی کو سوشل میڈیا پر پروموٹ کرنے اور اسی طرح کے دوسرے کاموں میں اس کی تقسیم کرنے والے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ تھا، یعنی میں اس آرگنائزیشن اور مووی کی پروموشن کا حصہ تھا۔ یہ چند مثالوں میں سے ایک ہے۔ ظاہر ہے اب مجھے اس پر بے حد افسوس ہے، لیکن میں ایسے کچھ پروجیکٹس میں شامل تھا، بالکل تھا۔ کس وجہ سے آپ کو اسلام کی طرف کشش محسوس ہوئی؟ مجھے فوراً ہی اسلام کی طرف کشش محسوس نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ میں صبح اٹھا اور مسلمان ہو گیا، ظاہر ہے نہیں، لیکن مجھے اسلام کے متعلق کچھ ڈاؤٹس تھے۔
ये बात मेरी अकल में नहीं आती थी। मीडिया हो, सियासतदान हो, ये सब कहते हैं इस्लाम बुराई फैलाता है और ये मुआशरे के लिए, हमारी आजादी के लिए बुरा है और ये बुराई से भरा हुआ है, लेकिन ये बात अकल में नहीं आती थी। दुनिया के 1.5 बिलियन लोग क्या सब बुरे, कुसीले और खतरनाक लोग हैं? हॉलैंड में 1 मिलियन से ज्यादा लोग मुसलमान हैं। क्या ये सब बुरे, कुसीले और खतरनाक लोग हैं? और कितने ज्यादा लोग मुसलमान हैं? बहुत से लोग अच्छे, नेक और दोस्ताना हैं, जिन्हें मैं खुद जानता हूँ, और वो कहते हैं कि आपको इस्लाम के मुतालिक जानना चाहिए क्योंकि इस्लाम के बारे में आपके ख्यालात गलत हैं। हाँ, यकीनन, मगर मैंने कुरान पढ़कर इस्लाम के मुतालिक जानना शुरू किया। मैं मस्जिद गया, इमामों से, दूसरे मुसलमानों से बात की, खुद थोड़ी बहुत रिसर्च की। मैं लाइब्रेरी गया और आप इस्लाम के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं ये उतना ही हर एक के लिए और खसूसन मेरे लिए वाज़ेह हो गया। लेकिन उस अरसे के दौरान मैंने जितना इस्लाम के मुतालिक जाना ये उतना ही मेरे दिमाग से दिल में उतर गया। गोया ये एहसास हुआ, वाह ये शानदार है, खूबसूरत है, ये कुछ सवालों के जवाब दे रहा है, ये सब लोग गलती पर है, ये शानदार मजहब है। मेरे ख्याल में इस मजहब के पास मेरे सवालों के जवाब हैं। और जब आप इस्लाम को स्टडी करते हैं तो ये सब चीजें, सारे डाउट्स सब गायब हो जाते हैं, सारी खलाएं पुर हो जाती हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। वो कौन सी पहली चीज थी जिससे इस्लाम के लिए आपके दिल में नरमी आई? ये वो सवाल है जो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, और ये कुरान के सिर्फ एक खास हिस्से, एक मखसूस आयत की बात नहीं है, बल्कि ये खुद इस्लाम और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बात है। यह नेदरलैंड में किताब है, इसका नाम है मुहम्मद, और यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर है। इसने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे लिए तो ये एक रिसर्च थी, मैं इस्लाम के मुतालिक स्टडी कर रहा था, और ये मेरी मुफाद परस्ती के बायस बहुत सुस्त रफ्तार अमल था। यानी ठीक है, मैं इस्लाम को स्टडी करूंगा, लेकिन ये सब झूठे हैं और ये सच नहीं है, ये मुझे ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मस्जिद में होने वाली बातें, हाँ वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ध्यानदार नहीं थी। लेकिन आप जितना ज्यादा सीखते हैं, आप खुले जहन से इस्लाम पर जितनी ज्यादा रिसर्च करते हैं, खुले दिल खुले जहन के साथ ये करना बहुत जरूरी है, तो फिर आप सच का इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल एक लंबे सफर के बाद एक गैर मुस्लिम से तकरीबन मुसलमान होने तक मुझे तकरीबन 1 साल लगा, लेकिन आखिरकार मुझ पर यह वाज़ेह हो गया कि इस्लाम एक शानदार मजहब है, और 2013 में मैंने कलमा पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप उन लोगों के बारे में कैसा महसूस करते थे जो इस्लाम के खिलाफ ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे? मैं असल में मिसगाइड हो गया था। मेरा हमेशा से एक ख्याल था कि नेदरलैंड और मगरबी यूरोप में मीडिया दयानतदार और मकसीदियत का हामिल है, और यही ख्याल सियासतदानों से भी मुतालिक था कि वो दयानतदार और अक्लमंद लोग होते हैं, वो हमारे लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ और हमारी रहनुमाई के लिए है। लेकिन मैंने उन्हें धोखेबाज महसूस किया। मतलब जब आप इस्लाम के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी मालूम होता है कि इस्लाम के मुतालिक उनकी हर बात गलत है, ये मनफी है। तो मैं असल में बहुत मायूस हो गया था, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश करके एक इस्लाम मुखालिफ इंसान बना दिया। आपने कलमा कैसे पढ़ा? क्या आप हमें उन लम्हों में ले जा सकते हैं? जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरी उम्र 45 साल थी। मैंने मस्जिद में कलमा पढ़ा था। मैं वहां पहले भी कुछ मरतबा गया था। मेरे जहन में इस्लाम के मुतालिक कुछ सवालात थे, तो उन्होंने कहा आप मस्जिद चले जाएं और वहां आप अपने सारे सवालात पूछ सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो शायद मुझसे नफरत करते हैं और मुझे वहां आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन मुझे वहां वेलकम किया गया। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, आप अंदर आ सकते हैं। वो बहुत दोस्ताना थे। वहां चाय और दूसरी चीजें थी। मैंने वहां बातों में घंटे गुजार दिए, और ये भी एक चीज थी जो मेरे लिए कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि उन लोगों को तो मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। ये इतने दोस्ताना कैसे हैं? ये इतने खुले जहन के कैसे हैं? ये मेरे तमाम सवालों के जवाब कैसे दे सकते हैं? ये भी एक चीज थी जो मेरे इस्लाम कबूल करने का जरिया बनी। ये मैंने बहुत राजदारी से किया, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चल जाता तो मेरी मुलाजमत जा सकती थी, मेरा होता जा सकता था। लेकिन उस वक्त मैं हिचकिचाहट का शिकार था। मैंने मस्जिद में कलमा पढ़ा था, लेकिन लोगों के सामने नहीं। मैं छोटे से दफ्तर में था जहां इमाम भी नहीं थे। बस मैं और मस्जिद का एक रज़ाकार था जो एक रहनुमा के तौर पर इस पूरे अमल में मेरी रहनुमाई कर रहा था। हमने कलमा पढ़ा, मगर वहां कोई और नहीं था। तो असल में इस्लाम के बारे में जानने की शुरुआत से लेकर मेरा कलमा पढ़ने तक ये चंद दिनों, चंद हफ्तों की बात नहीं थी। इसमें मुझे 1 साल लग गया था। ये एक रोलर कोस्टर की तरह था। कभी मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता और कभी मैं इस पर सोचता भी नहीं था। लेकिन इस अरसे में ये वाज़ेह हो गया था कि इस्लाम खूबसूरत है, और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मैंने कलमा पढ़ लिया था। जब आपने कलमा पढ़ा तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ? क्या आपको सुकून और इत्मीनान महसूस हुआ था? हाँ बिल्कुल, शैतान तो मौजूद ही है। आखिरी मिनट में भी वहां वो सरगोशी कर रहा था, नहीं ये मत करो, और ये कि तुम ब्रेन वॉश हो गए हो, रुक जाओ। इस्लाम कबूल करने से 5 मिनट पहले तक भी। लेकिन कलमा पढ़ने के बाद महसूस हुआ जैसे बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मैंने हकीकी खुशी महसूस की। मैं अपना एहसास बयान नहीं कर सकता। जो लोग ये कर चुके हैं वो शायद जान सके कि कैसा एहसास होता है। लगता है जैसे नया जन्म हुआ हो। आपके इर्द गिर्द के लोगों का आपके इस्लाम लाने पर क्या रद्द अमल था? वो तो हैरत में डूब गए। ईमानदारी की बात है, मैंने गलती की, क्योंकि मुसलमान होने और इस्लाम लाने का पूरा सफर मैंने अकेले किया। कोई इस बारे में नहीं जानता था।
सिवाय मेरी माँ के, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वैसे वो अब भी मुझे सपोर्ट करती हैं। मेरे दोस्त, मेरे कोलीग्स, कोई भी मेरे सफर के मुतालिक नहीं जानता था, लिहाजा मैं वक्त आने पर इससे थोड़ा खौफजदा था। ओके, अभी किसी को मालूम नहीं है कि मैं इस्लाम लाने की तरफ जा रहा हूँ, मगर ये उनके लिए शॉकिंग होगा, लिहाजा मैं बड़ी हिचकिचाहट का शिकार था। मैंने सामने आने के लिए चंद हफ्ते इंतजार किया, लेकिन मेरी बाकी फैमिली, ज्यादातर अफराद, यहाँ तक कि मेरे अपने भाई और बहन फासले पर रहते हैं। उन्होंने मुझसे ताल्लुक नहीं तोड़ा, लेकिन पहले जैसी बात भी नहीं है। इस्लाम वो मौजू है जिस पर हम बात नहीं करते, ये बहुत हसास है। मैं फासला महसूस करता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त पिछड़ गए, मेरी मुलाजमत भी चली गई। इस्लाम लाने के बाद आपने कौन से बड़े चैलेंज का सामना किया और आपको क्या कुर्बानियां देनी पड़ी? जब मैं मुसलमान हुआ तो उस वक्त सियासतदान था, लेकिन मैं तब इस सियासी पार्टी PFF के लिए काम करना छोड़ चुका था, क्योंकि इस पूरे अरसे में ये वाजे हो चुका था कि यहाँ मेरी जगह नहीं है। लेकिन उनके लिए भी ये बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। अगर आप इस सियासी तंजीम, इस सियासी पार्टी में मुसलमान हो जाए तो आपका करियर खत्म हो जाता है। मेरा मुसलमान होना सबको मालूम हो जाने के बाद जाहिर है कि मेरी मुलाजमत चली गई, मेरे बहुत से दोस्त पिछड़ गए, मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स खो गए, मेरे बहुत से कुलीग्स छूट गए, तो मुझे कुछ करना पड़ा। अपना घर बेचकर छोटे घर में आ गया, अपनी कार बेचनी पड़ी। मेरी जिंदगी थोड़ी बहुत अयाशी वाली थी। मेरी नजर में ये कुर्बानी नहीं थी। पहले मेरे पास बहुत दौलत थी, खूब छुट्टियां, महंगी घड़ियां, एक खूबसूरत कार और बहुत कुछ, सब अच्छा और नायाब। लेकिन ये सब हैं तो सिर्फ चीजें ही। मैं अपने अंदर एक खालीपन महसूस करता था। लेकिन इस्लाम लाने के बाद ठीक है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन इतना खुशो खुर्रम मैं पहले कभी नहीं था। तो इससे साबित होता है कि ये चीजें, ये मादियत परस्ती, दौलत और महंगी कारें आपके अंदर की खला को पूर्ण नहीं कर सकती। तो ये कुर्बानी मादी चीजों के हवाले से थी। हाँ, दोस्तों और फैमिली की कुर्बानी और उन्हें खो देना, बिल्कुल ये कुर्बानी है। बहरहाल मैं आज जितना खुश हूँ पहले कभी नहीं था। आपके मुसलमान होने के बाद क्या किसी और ने भी आपसे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया? मेरे पास एक गोद लिया बच्चा है, सिकंदर। उसने मेरे फौरन बाद दुबई के एक इवेंट के दौरान इस्लाम कबूल किया। वो पहले इस्लाम में दिलचस्पी रखता था। वो मेरे साथ मस्जिद जाता था और कुछ सबक वगैरह लेते हुए भी साथ होता था। और आखिरकार जब हम वहां थे तो उसी हफ्ते के दौरान उसने कुछ अहम लोगों से बात की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और मैंने दूसरे लोगों की कहानियां सुनी। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने मेरी वजह से इस्लाम कबूल किया, क्योंकि अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की, लेकिन हो सकता है उन्होंने मुझसे मुतासिर होकर इस्लाम को जाना हो, इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात हासिल की हो, मस्जिद या किसी और जगह गए हो, या इस्लाम के मुतालिक सोचा हो, कुछ रिसर्च की हो सकता है। मैंने काफी लोगों से यही सुना है, मुझे इसकी उम्मीद है। आपको हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा मुतासर किया? उन्होंने कठिन जिंदगी गुजारी। उन्होंने अपनी फैमिली में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। लोगों ने पत्थर मारे और भी बहुत कुछ सहा, और फिर भी वो नरम मिजाज रहे। वो गुस्सा नहीं हुए। वो उसी तरह सब्र करने, माफ करने वाले, दोस्ताना, मुस्कुराते चेहरे, अदब, इखलाक वाले रहे। इन तमाम मुश्किलात, अपने मुकाबले पर मौजूद इन तमाम चीजों के बावजूद उनके किरदार में कोई तब्दीली नहीं आई। और मेरे लिए ये बहुत मुतासिर कुन बात है, और मैं भी यही चीज अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जिंदगी गुजारने की अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त आप कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? मराकश में हमारे कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ हम गरीब लोगों, गरीब फैमिलीज की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खसूसी इस्लामी मदद नहीं है, बल्कि हम उन्हें इस तरह मदद दे रहे हैं कि वो स्कूल जा सकें, उनके पास मटेरियल जैसे स्कूल की किताबें और दूसरी चीजें हों। हमें बहुत से बिजनेसमैन अतियात देते हैं और हम सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए छोटे छोटे घर बनाते और दीगर फलाही काम करते हैं। छोटे छोटे काम, हम छोटे बच्चों के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और जाहिर है इस्लाम के मुतालिक भी बात करते हैं। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे ज्यादा इस्लाम जानते हैं, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ। वो मुझे इस्लाम के बारे में बताते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कैसे बेहतर मुसलमान बन सकते हैं, और हम दावा के जरिए भी अतियात जमा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले और आपके पास सिर्फ 1 मिनट हो, तो आप उनसे क्या कहेंगे? मेरा पैगाम होगा कि मीडिया की बात ना सुने, उन सियासतदानों को ना सुने जो इस्लाम के बारे में मनफी बात करते हैं। खुद अपनी रिसर्च करें। आप पर हमेशा अपने इल्म की जिम्मेदारी आयद होती है। अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो रिसर्च करें, और ये बहुत आसान है। सोशल मीडिया पर बेशुमार मवाद है। आप इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। मस्जिद जाएं, इमाम से बात करें, मुसलमानों के पास जाएं, इस मजहब के बारे में बात करें, और मीडिया और सियासतदान जो आपको बताएं उस पर अंधाधुन एतमाद न करें। खुद अपनी रिसर्च करें, तब आपको मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह कि इस्लाम ही मसाइल का हल है और इस्लाम ही सच है। भाई अरनोद, इस खूबसूरत इंटरव्यू के लिए आपका शुक्रिया। मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स में आपसे मुलाकात रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं जरूर वापस आऊंगा इंशाअल्लाह। मुझे बुलाने पर एक बार फिर बेहद शुक्रिया। दोस्तों, ये थे भाई आर्नोल्ड वान ड्रॉन, जो अपनी कारगुजारी सुना रहे थे, कैसे वो उस तंजीम को छोड़ के फिर इस्लाम की तरफ राग़िब हुए, कैसे उन्होंने रिसर्च की और आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने आप को इस्लाम की तरफ लेके आए। और जैसे उन्होंने बताया कि ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं था,
بلکہ ان کو تقریباً اس میں آلموسٹ 1 سال لگ گیا ریسرچ کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے. تو ہمارے جو بھی غیر مسلم بھائی یا بہن دیکھ رہے ہو یہ ویڈیو، تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میڈیا کی باتوں کو نہ سنیں، آپ خود چیزوں کو اسٹڈی کریں. آپ چیزوں کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کے پاس ایکوریٹ نالج ہوگا. آپ کو جب بخار ہوتا ہے تو آپ دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نہ کہ کسی انجینئر کے پاس یا آرکیٹیکٹر کے پاس جو اس بیماری کو جانتا ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس فیلڈ کا. تو آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی کمپلیکیشنز ہے، کوئی کوشچنز ہیں آپ کے، تو آپ مسلمانوں کے پاس آئیں گے، نہ کہ آپ میڈیا کے پاس جائیں گے یا سیاستدانوں کے پاس جائیں گے. ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہی ہوگی. تھینک یو سو مچ.